Mites and ticks are actually small arthropods belonging to order Acarina. ठीक है कि mites जो हमारे पास हैं they are arthropods, they belong to order Acarina. ठीक है, class Acinda and phylum Arthropoda. The scientific discipline that is specifically devoted to the study of mites and ticks is actually called as acarology. The scientific discipline that is specifically devoted to study of ticks and mites is called as acarology. ठीक है, ticks and mites जो हैं they are usually arachnids, not insects. ठीक है, they are different from insects. Ticks and mites are usually arachnids, they are not insects. ठीक है, mites and ticks are actually the group of invertebrates, they are more specifically related to spiders. कि इनकी जो बॉडी की मॉर्फोलॉजी होती है that is more resemble to spiders. Most of them are very very small and they are hardly visible to naked eye. ठीक है, if we talk about the mites, they are very small creatures. ठीक है, we are actually unable to see them without माइक्रोस्कोप के आपके पास मोस्टली जो माइट्स होती हैं इनकी जो विजुअलाइजेशन होती है दे आर एक्चुअली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल. अगर हम इनके जनरल से बच्चों साइज की बात करें तो जो है ये माइट्स होती हैं दे आर स्मॉलर इन साइज दैन टिक्स. ठीक है, टिक्स हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, वैसे ये कंपैरिजन में आ रहा है. तो माइट्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट 0.4 to 3 millimeter in their length. ठीक है कि माइट्स होती हैं दे आर ऑलमोस्ट 0.4 to 3 millimeter in their length, whereas ticks are almost 3 to 29 millimeter in their length. ठीक है, the majority of the mites and ticks are actually to some extent more or less round or oval in their shape. ठीक है कि हमारे पास मेजॉरिटी जो mites and ticks की होती हैं they are round to oval in their shape. If we talk about the body division, ठीक है कि आपके पास इनकी जो body division है that is actually having head, thorax and abdominal region. ठीक है, and their body is unsegmented. ठीक है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी जो होते हैं वो सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते. आपके पास माइट्स जो हैं दे आर अमंग वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स. ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब so they are often go unnoticed. ठीक है, they cause loss to the stored products, although also they are damaging to the beneficial insects like honeybees. If we talk about their general characteristics, they are found in variety of habitats like aquatic and terrestrial environment. In aquatic environment, they are specifically related to lakes and ponds. While in case of terrestrial environment, they are present in plants, mammals, birds, and insects, or they are free. They can be present in free on soil. They can be present on soil as well. ठीक है, here is the body division. Their body is actually divided into two regions, cephalothorax region and abdomen, and their body is unsegmented. In diagram you can see there are different types of mites and their body is unsegmented. ठीक है कि इनकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो कोई भी सेगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, they actually possess 4 pair of legs. इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं that are sucking and they lack एंटीना. ठीक है, अगर हम इनके लेग्स के 4 पेयर की बात करें तो इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर अडॉप्टेड फॉर सकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर पेनिट्रेटिंग स्किन. ठीक है कि इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद सकिंग एक्टिविटी. ठीक है, ये सक करते हैं जो आपके पास इनके पास डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं और जो किसी भी अगर ये होस्ट के साथ अटैच होते हैं तो उसकी स्किन से सक करने के लिए मतलब स्पेसिफिकेशन होती है इनके माउथ पार्ट्स की. ठीक है, मोस्ट जो हमारे पास माइट स्पीशीज होती हैं दे एक्चुअली ले एग. ठीक है, बट वेरी रेयर स्पीशीज होती हैं दे आर एसोसिएटेड विद यंग वंस. बट ठीक है, मोस्टली जो आपके पास माइट्स होती हैं दे एक्चुअली ले एग. ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि अगर हम इनके जनरल लाइफ साइकिल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल, देयर लाइफ साइकिल इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल. देयर लाइफ साइकिल इज सिंपल इन अ वे कि इसके ऑलमोस्ट जो होती हैं वो 4 स्टेजेस होती हैं. एग, 6 स्टेज जो है इनके लार्वल स्टेज होती है. ठीक है, उसके बाद प्रोटोनिम्फ, डिट्यूरोनिम्फ एंड अडल्ट. ठीक है कि आप इसकी जो लाइफ साइकिल है सिंपल, इसमें 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं जिसमें लार्वल स्टेज, निम्फ एंड अडल्ट. ठीक है, ऑल मतलब दरमियान में थोड़ी सी इंटरमीडिएट स्टेज आती है बट
ओवरऑल आप कह सकते हो कि 4 जो है वो लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ऑल स्टेजेस जो होती हैं इनके साथ यूनिक कैरेक्टर ये है कि दे हैव 8 लेग्स, ठीक है। ऑल स्टेजेस जो होती हैं माइट्स की, दे आर एसोसिएटेड विद 8 लेग्स बट एक्सेप्ट 6 स्टेज लार्वा, ठीक है। लार्वा का आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो होगा कि जो लार्वा स्टेज है इसके साथ लिखा हुआ है 6 लेग्स, बाकी जो इसकी सारी की सारी स्टेजेस हैं दे आर हैविंग 8 लेग्स, ठीक है। अब हम जब माइट्स और टिक्स की बात मतलब जनरल से इनके बाइट की बात करें, हो दे आर एक्चुअली मतलब डेंजरस इन अ वे कि इनका जो बाइट होता है या कट होता है, दे एक्चुअली पुट देयर इंटायर हेड इनटू द वाउंड, दे एक्चुअली थ्रस्ट देयर होल हेड इनटू द वाउंड, जिससे क्या होगा कि इनका जो एंकरिंग स्ट्रक्चर होगा इनको क्या करेगा, उसके होस्ट की जो बॉडी है वहाँ से जूसेस वगैरह की सकिंग में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास जो माइट्स वगैरह होती हैं या टिक्स वगैरह होती हैं, इनके जो माउथ पार्ट्स अगर हम इनको सेपरेट करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगर हम जनरली माइट्स की बात करें तो माइट्स जो हैं हमारे पास इंसेक्ट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इनमें से कुछ जो हमारे पास माइट्स हैं दे आर एक्चुअली काजिंग इरिटेशन टू ह्यूमंस, ठीक है। जहाँ पे आपको डायग्राम में शो होगा कि जो सार्कोप्टाइडी है, ठीक है, स्कैबीज माइट है, दैट इज फेमस माइट, कि आपके पास फेमस माइट है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करती है, इच काज करती है, ठीक है। इट काजेज 7 ईयर इच आर नॉर्वेजियन इच नॉट वेक्टर ऑफ एनी डिजीज, ठीक है। कि आपके पास क्या है कि जो सार्कोप स्कैबीज है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्कैबीज माइट, ये स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या करती है, इचिंग काज करती है, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ है कि आपके पास जो कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं इसकी, वो के जो कि स्पेसिफिकली डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो मेंच जो है दैट इज माइट एसोसिएटेड डिजीज, ठीक है। कि मेन जो है दैट इज माइट एसोसिएटेड स्किन डिजीज ऑफ वर्टिब्रेट्स, कुछ इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो डिजीज काज करती हैं। अब हमारे पास जो अदर स्पीशीज आ जाती हैं इसकी मतलब माइट्स की, दे आर एक्चुअली बेनिफिशियल और मतलब डिफरेंट जो उनके हैं इंपॉर्टेंट रोल आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ह्यूमन इच माइट है दैट इज सार्कोप स्कैबीज, इस माइट की अगर हम जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आप लोगों को डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि दिस माइट इज एक्चुअली राउंड इन शेप एंड वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। इसका जो कलर होता है दैट इज व्हाइटिश टू ग्रेश कलर, ठीक है। कि इसका जो कलर है दैट इज वेरिएबल, और इसकी जो बॉडी होती है दैट इज एक्चुअली हैविंग लाइंस, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है इसकी क्यूटिकल की सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके थोड़े से जो है 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मेल और फीमेल की बॉडी होती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, कि आपके पास क्या होता है कि जो थर्ड एंड फोर्थ पेयर लेग्स का होगा दैट इज डिफरेंट इन केस ऑफ मेल एंड फेल, एंड दैट इज द रीजन कि आप क्या करते हो, हम आइडेंटिफाई करते हैं माइट्स को, मेल और फीमेल माइट्स को, ठीक है। तो दे आर आल्सो वेरी स्मॉलर इन साइज। हमारे पास जो सार्कोप स्कैबी है दैट इज एक्चुअली एन एक्टोपैरासाइट, ठीक है। हमारे पास जो अडल्ट माइट है, इच माइट है दैट इज सार्कोप स्कैबीज या स्कैबीज माइट जो है दैट इज एक्टोपैरासाइट, ठीक है। कि लेकिन क्या होता है कि मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट, बट आफ्टर क्या होता है कि जब इसकी थोड़ी सी सेक्सुअल फेजेस होती हैं तो फीमेल एक्चुअली हाइड्स इटसेल्फ बिनेथ द स्किन ऑफ होस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द हेड रीजन। और इसके बाद क्या होता है कि एग लेइंग वाली एक्टिविटी होती है, और उसके मतलब विद इन मतलब फ्यू डेज एग की हैचिंग और सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद जो होता है कि सम टाइम क्या हो जाती है, ये डाई ऑफ हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल सी सार्कोप स्कैबीज की डिजीज स्टेटस की बात करें, व्हाट इज एक्चुअली द डिजीज स्टेटस, हाउ दिस इज एक्चुअली हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स, तो आपके पास क्या होता है कि इसकी जो डिजीज होती है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इचिंग, ठीक है, व्हिच इज ड्यू टू फीडिंग ऑफ माइट्स, ठीक है। कि द डिजीज इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद इचिंग, ठीक है। इंटेंस इचिंग होती है दैट इज ड्यू टू द फीडिंग एक्टिविटी ऑफ दीज माइट्स, ठीक है। द इच development, the process of its development is actually longer process and it takes almost 6 to 8 weeks, ठीक है। कि आफ्टर जब ये इन्वेड करती हैं होस्ट की बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि पहले स्लाइट इचिंग होती है, देन इंटेंस इचिंग के लिए क्या होता है कि 6 to 8 वीक्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन जो होते हैं मोस्टली जो होता है वो मतलब स्फीयर हो जाता है नाइट टाइम में, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हो द बिहेवियर ऑफ दिस इच माइट इज बिट नॉक्टर्नल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये जो है इच माइट है
इनके जो एग्स होते हैं, क्योंकि ये स्किन के नीचे एग ले करती है, इससे क्या होता है कि आपके पास जो है वो, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट या कंट्रोल की बात करें तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि अगर आप स्किन के ऊपर सुपरफिशियल कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हो, कोई भी जो है वो स्प्रे किया जाए या कुछ भी इस तरह की मतलब जो क्रीम है या कुछ भी हम अप्लाई करेंगे तो दैट इज़ नॉट यूजफुल। वाई? क्योंकि इसके जो एग्स होते हैं दैट आर एक्चुअली बिलो द स्किन, ठीक है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि इनके नंबर को रिड्यूस करना या इनको कंट्रोल करना या माइट्स को किल करना होता है, दैट बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। टू सम एक्सटेंट क्या होता है कि जो कुछ केमिकल्स जो स्पेसिफिकली जो मतलब इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि अदर इंसेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, इनमें हमारे पास बेंजाइल बेंजोएट है, ठीक है, या फिर कार्बाइल कंपाउंड होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन देयर कंट्रोल के। हमारे पास कुछ जो कार्बाइल कंपाउंड है या बेंजाइल कंपाउंड, ठीक है, बेंजाइल बेंजोएट, अगर इनको मतलब थोड़ा सा किया जाए मतलब इनके सॉल्यूशंस को अप्लाई किया जाए तो आप क्या कर सकते हो, इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके पास ये जो सार्कोप्स स्कैबीज है दैट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स में ये जो है दैट इज एन एक्टोपैरासाइट, और एक्टोपैरासाइट इन अ वे कि आपके पास अडल्ट फार्म जो होती है वो ह्यूमन बीइंग की स्किन के ऊपर रहती है, और इसकी नाइट टाइम जो एक्टिविटी नाइट टाइम में क्या करती है, ये इंटेंस इचिंग काज करती है, और क्या होता है ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स जो होते हैं इसमें आफ्टर इन्फेक्शन क्या होता है कि इसकी डिजीज़ जो डेवलप कर रही होती है, ये जो इचिंग होती है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है, या उससे क्या हो जाता है प्रोफ्यूज इचिंग वाली एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। यानी ये आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखते हैं कि जो बर्निंग होती है दैट इनिशियली अकर इन द थिनर स्किन ऑफ द बॉडी, ठीक है। कि इनिशियली क्या करती है कि ये जो थिन पार्ट है उसके ऊपर करेगी, ठीक है। देन क्या करता है कि आपके पास जो मतलब कौन कौन से रीजन को ये स्पेसिफिकली अफेक्ट करती है, बैंड ऑफ नी एंड एल्बो, वेबिंग बिटवीन फिंगर्स एंड फोल्ड्स ऑफ रिस्ट, जेंटिलिया एंड बटेक्स, ब्रेस्ट, बोनी प्रोजेक्ट्स, नॉर्वेजियन स्कैबिज, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो स्पेसिफिकली क्या करती हैं कि मतलब क्योंकि इनके जो माउथ मतलब इटसेल्फ क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक इंटाइटीज, कि आप इनको ऐसा चीज तरह विजुलाइज नहीं कर सकते। बहुत अगर आप लोग मतलब क्या करें कि गौर से देखें तो आप इनको देख सकते हो, अदरवाइज क्या है कि हमारे लिए इनको जो है आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कि आज जो हमारे पास ये माइट्स की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है या किसी और वजह से, तो क्या होता है कि ये मोस्टली जो सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। आफ्टर क्या होता है कि एग लेइंग वाली एक्टिविटी होगी, आफ्टर इन्वेजन ऑफ सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज एग्स आर एक्चुअली लेट, ठीक है। तो एग्स जो होते हैं एग्स की हैचिंग होगी, वही ऑलमोस्ट जो 4 लार्वल स्टेजेस हैं वो कंप्लीट होंगी, और मेच्योर जो हैं अडल्ट जो आपके पास ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे। इस तरह क्या होता है इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो सिंपली रिपीट होता रहता है, ठीक है। अगर हम बच्चों ये आप लोग डायग्राम में देखते होंगे कि आप लोगों को जो स्लाइड में शो रहा है कि किस तरह जो है ये स्किन में या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो होती हैं वो इन्फेक्ट करती हैं, और इचिंग वाली एक्टिविटी जो है उससे जो सोर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। अगर हम रिकग्निशन करना चाहें स्कैबीज की तो वी कैन रिकग्नाइज स्कैबीज इन अ वे कि फीमेल्स एक्चुअली नैरो ट्विस्टिंग टनल्स में रहती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि फीचर्स इन टनल्स में बी विजिबल थ्रू स्किन, ठीक है। स्वीयर इचिंग रिएक्शन टू प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा जेनिटल लेजन्स हो सकते हैं, लार्ज रैशेज ऑन द बॉडी, सोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम स्क्रैचिंग पेशेंट्स ऑफन डर्टी, ठीक है। कि आपके पास रिकग्निशन क्या होता है कि इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं बॉडी के ऊपर लेजन्स की फॉर्मेशन होती है, जो लेजन्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद दीज इच माइट्स दैट इज करेक्टराइज कि आप क्या करो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होता है उसका अगर हम लेके क्या करें रैश को जो है वो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये तो हमारे पास बच्चों सार्कोप्स स्कैबीज की बच्चों बात हो रही थी कि सार्कोप्स स्कैबीज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी रैश जो है वो कंटिन्यू रहती है तो मैं आपको बताती हूँ ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स जो हैं या 6 to 8 वीक्स भी इसके इंक्यूबेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सेकंड टाइम में क्या होता है कि ये 2 to 4 डेज री इन्फेक्शन अगेन इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर रही होती है, रिपीट कर रहे होते हैं अडल्ट की फॉर्मेशन और ओवरऑल, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीवियर प्रोटाइटिस, स्क्रैचिंग एट नाइट आफ्टर हॉट बाथ, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बॉयल, मतलब अब आपके पास क्या होता है कि जहाँ पे स्कैबीज की वजह से इन्फेक्शन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के जो हैं वो चांस हो जाएंगे कि कोई और जो है वहाँ पे वायरल फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके मतलब इनके जो स्कैबीज का इन्फेक्शन है उसको वर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके जर्नल जो है डायग्नोसिस की बात करें सार्कोप स्कैबीज की, ठीक है, तो स्क्रैपिंग ऑफ स्किन इज एक्चुअली द मेन सोर्स कि स्किन का जो है वो थोड़ा सा स्क्रैप लिया जाए। इसके अलावा किया जाए कि स्क्रैप को लिया जाए। द अदर थिंग इज इंक ऑन स्किन
पुट ऑन टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, कि कोई एंटीबायोटिक्स अप्लाई की जाए। इन्फेस्टेशन जो होती है ऑलमोस्ट 1 to 15 अडल्ट, और एवरेज जो होते हैं वो 11 अडल्ट होते हैं, ठीक है। 3% हैव मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 1000 नॉर्वेजियन के। ये आपके पास क्या है डायग्नोसिस के जो इनका अटैक जब ये बॉडी होस्ट की बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो कितने नंबर में जो होती है वो इन्फेंट्स जो है सॉरी माइट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सिंपल वेज क्या होता है कि स्किन स्क्रैपिंग के थ्रू जो है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया जाता है, और ओवरऑल हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों इसके अलावा ये तो हमारे पास फेमस जो डिजीज थी दैट इज सार्कोप्स स्कैबीज जो है वो ह्यूमंस के अंदर स्कैबीज डिजीज काज करती है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और माइट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद क्रॉप्स दैट इज स्ट्रॉ इच आर हार्वेस्ट माइट, ठीक है। स्ट्रॉ इच आर हार्वेस्ट माइट, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइमोट्स वेंट्रिकोकस, ठीक है, कि स्ट्रॉ इच आर हार्वेस्ट माइट जो है दैट इज पाइमोट्स वेंट्रिकोकस, ठीक है। इसके मोस्टली जो आपके पास स्ट्रा इच आर हार्वेस्ट माइट है या पाइमोट्स वेंट्रिकोकस that is specifically associated with persons who are involved in agricultural activities, ठीक है, कि आपके पास person who are actually engaged in agricultural activities they are generally attacked by this mite, ठीक है, कि person who are specifically engaged in agricultural activities they are attacked by this mite, and if we talk about their behavior they are actually predator in their behavior, कि हमारे पास जो straw itch mite है that is predator in its nature and it actually prey on different types of mouths and weevils, ठीक है, कि आपके पास जो different mouths and weevils हैं उनको ये क्या करती है, प्रे के तौर पे मतलब यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट देयर साइज दे आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, कि आपके पास जो स्ट्रा इच माइट है इट इज आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, कि आपके पास ये भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आती है। ओवरऑल जो मतलब अगर हम इसके एग प्रोडक्शन की बात करें तो ये लार्जेस्ट नंबर में एग जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इनकी जो फीमेल है इट एक्चुअली लेस मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 250 जो मतलब क्या होता है कि माइट्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, विद इन 7 डेज, तो इसका नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास अडल्ट जो माइट्स होती हैं मतलब वो बाइट करेंगे, और बाइट करने से क्या होता है कि इसकी वजह से स्किन के ऊपर क्या होते हैं कि रेड कलर के स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि इचिंग वाली एक्टिविटी काज होती है। सम टाइम जो क्या होता है कि इसकी इचिंग से या इसकी वजह से बॉडी का जो मतलब इम्यून सिस्टम को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है कि फॉरेन एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक भी जो होता है वो स्ट्रा इच माइट की वजह से हो सकता है, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है कि फीवर वगैरह या मतलब जो वॉमिटिंग और हेडेक है ये भी स्टार्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रा इच माइट, ठीक है। स्ट्रा इच माइट जो है अगर हम इसके जनरल कंट्रोल की बात करें तो सिंपलेस्ट वे जो है दैट इज़ के मतलब जो आपके पास एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उससे मतलब उनसे अवेयर आ जाए, ठीक है, कि उसके मतलब इन्फेक्टेड जो हमारे पास स्ट्रा है, इन्फेक्टेड मटेरियल है, उससे क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मतलब जो अदर हमारे पास ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं दे विल इन्वॉल्व some types of स्पेसिफिक क्लॉथ, ठीक है, कि जब आप क्लॉथ उसको डील कर रहे हैं मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में तो स्पेसिफिक टाइप के क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं, आप वो यूज़ करके तो जो है इनके अटैक से जो होते हैं वो बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इनके लिए जो एक और टेक्निक है, इनको मतलब अगर क्रॉप्स के ऊपर हमें डायग्नोज हो जाता है, हम डायग्नोज करते हैं कि वहाँ पे जो है ये माइट्स मौजूद है और उनकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वी कैन हैव फ्यूमिगेशन, ठीक है, कि फ्यूम्स जो हैं डिफरेंट जो आपके हमारे पास केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कि इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए कि किसी भी साइड के ऊपर अगर ये किसी रेजिडेंशियल एरिया में या किसी भी जगह पे अपने आप को क्या कर रही हैं मतलब इन्फेस्ट करवा रही हैं, वहाँ पे ये आ रही हैं, तो क्या किया जा सकता है, फ्यूमिगेशन के टेक्निक के थ्रू या हीटिंग जो है ये भी हेल्पफुल होती है कि आप क्या करें, इरिटेशन से बचने के लिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और बच्चों हमारे पास टाइप है इसकी माइट की दैट इज चिगार, ठीक है, CHIGGERS, ठीक है। चिगार्स आर यूट्रोम्बिक्यूला अल्फ्रेडुक्साई, यूट्रोम्बिक्यूला अल्फ्रेडुक्साई जो है इट इज आल्सो माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होती है कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दे आर आल्सो स्केवेंजर, ठीक है,
ये भी हमारे पास स्कैवेंजर हैं और ऑलमोस्ट जो हमारे पास इसकी जो लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, सेम वे में क्या करती हैं ये इन्फेक्शन काज करती हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो मोस्टली जो हमारे पास ये ट्रॉम्बिक्यूला अल्फ्रेड डुक्साई है, ये स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही अटैक करती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की जो स्किन है उसके ऊपर अटैक करेगी और क्या होता है फीडिंग एक्टिविटी से क्या होता है इचिंग वाली एक्टिविटी होगी, तो ये भी हमारे पास माइट की एक टाइप होगी जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक करती है, दैट इज चिगार आर ये ट्रॉम्बिक्यूला अल्फ्रेड डुक्साई। अगर हम इसकी जनरल सी प्रिवेंशन या कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो सिंपली क्या है कि डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनका जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। तो इन्फेक्टेड जो क्लॉथ्स हैं या इन्फेक्टेड जो स्किन सरफेस है उसके ऊपर क्या किया जाता है, इनका सिंपल सा स्प्रे मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो जो कंपाउंड इसके लिए वो आपके पास डाइमिथाइल है, बेंजाइल, बेंजोएट है, टू सम एक्सटेंट जो है सम कूलिंग जो हमारे पास ऑइंटमेंट्स होती हैं दे आर आल्सो मतलब हेल्पफुल फॉर देयर कंट्रोल, ठीक है। कि अगर हम थोड़ी सी अगर इनकी रेमेडी की बात करें कि इनको सिंपल वे में से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि सम टाइम क्या होता है कि कोई भी जो ऑयल है, ऑयल भी स्किन के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अमोनिया भी यूटिलाइज की जाती है इसकी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऑयल भी जो होते हैं टू सम एक्सटेंट इनके मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक और माइट है दैट इज चिकन माइट, ठीक है। कि चिकन जो होती हैं चिकन के साथ जो माइट एसोसिएट करती है दैट इज डरमेनिसेस गैलेनी, ठीक है। डरमेनिसेस गैलेनी जो है इसका जो अदर नाम है इसको कि हम पोल्ट्री माइट भी कहते हैं, बर्ड माइट आर रोडेंट माइट्स, ठीक है। कि पोल्ट्री माइट, बर्ड माइट, रोडेंट माइट आर फाउल माइट, ये सारे के सारे इस चिकन माइट के नाम है, ठीक है। ये आपके पास क्या है कि मोस्टली जो है वो एसोसिएट करती है बर्ड्स के साथ, ठीक है। कि आपके पास जो बर्ड्स हैं उनके साथ एसोसिएट करती है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है कि ड्यूरिंग द डे मतलब अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें तो ये जो आपके पास प्लेस होती है जहाँ पे जो केजेस वगैरह होते हैं बर्ड्स के उनकी जो वॉल्स होती हैं उसकी साइड पे होंगे या सीलिंग जो होती है उसके अंदर होती है, या क्रैक्स जो होते हैं उनके अंदर क्या करती है ये रिजाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये हमारे पास अगर हम इसके जनरल से मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कुछ एक्सटेंट जो चिकन माइट होती है दैट इज ग्रेश इन कलर, ग्रेश ब्राउन इन इट्स कलर, ठीक है। इसके अलावा जो है ये स्पेसिफिकली फाउल के ब्लड के ऊपर जो होती है वो फीड करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास जो पोल्ट्री है उसकी जो है वो ओवरऑल क्रॉप पोल्ट्री की जो आपके पास क्या है हेल्थ को क्या करते हैं ये डैमेज करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम इसके जनरल प्रिवेंशन या कंट्रोल की बात करें कि हाउ वी एक्चुअली कंट्रोल दिस माइट, के मतलब हमारे पास इसको कंट्रोल करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास जो पोल्ट्री के चिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होती है अगर उनको ये अटैक हो जाए उसके ब्लड के ऊपर ये फीड करेंगे तो दैट कैन काज बिग लॉस, ठीक है। कि हमारे पास जो है ये क्या कर सकते हैं जो हमारे पास चिक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं ये सीवियरली जो होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास कंटेनर्स होते हैं या प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमने पोल्ट्री को या डिफरेंट एनिमल्स को प्लेस करना होता है कि वी कैन हैव सर्टन केमिकल ट्रीटमेंट्स के हम क्या कर सकते हैं पोल्ट्री हाउसेस में जो है वो डिफरेंट केमिकल्स के डिफरेंट रेट्स पे सोल्यूशन बना के क्या कर सकते हैं उसको स्प्रे कर सकते हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज हेल्पफुल फॉर देयर कंट्रोल, ठीक है। कि हमारे पास ये जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री में हम इसको इसलिए इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि डिफरेंट जो जहाँ पे इनके पोल्ट्री की हाउसिंग है तो स्पेसिफिकली वहाँ पे क्या किया जाए डिफरेंट केमिकल के सॉल्यूशंस बना के उनका फ्यूमिगेशन की जा सकती है या फिर केमिकल स्प्रे दैट इज हेल्पफुल सो they are actually eradicated from that place, so we can have safe मतलब पोल्ट्री और चिक फार्म्स, ठीक है। कि उनकी जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है माइट की दैट इज शीप स्कैब माइट, ठीक है। कि आपके पास जो शीप है दैट इज आल्सो एक्टोपैरासाइट, ठीक है। हमारे पास जो शीप स्कैब माइट है दैट इज एन एक्टोपैरासाइट माइट, और आपके पास क्या है कि ये वाइल्डली एसोसिएट करती है कैटल्स के साथ, ऑलमोस्ट जो है वो चीप्स, हॉर्स, गोट्स वगैरह के साथ क्या होती है ये माइट स्पेसिफिकली एसोसिएट करती है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली एक्टोपैरासिटिक माइट एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड,
इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। स्कैबीज जो है ये फेमस जो है वो डिजीज है शीप के अंदर जो काज होती है ड्यू टू दिस माइट, ठीक है। अगर हम इस स्कैबीज की या सारोक इक्वी ओवस की बात करें तो इसका जो साइज होता है दैट इज स्मॉलर इन साइज, और इसके जो बॉडी कलर होता है दैट इज ग्रे कलर, ठीक है, ग्रेश टू ब्राउन कलर होता है। सेम इसके पास क्या होते हैं, बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, और बाइटिंग माउथ पार्ट्स के थ्रू क्या कहते हैं, ये होस्ट की स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं एंड आफ्टर देयर पेनिट्रेशन दे एक्चुअली सक फूड, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास स्कैबीज हैं, अगर हम अगर इनकी बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि जो ब्लड क्या कहते हैं जिस साइड पे ये क्या करते हैं स्कैबीज माइट जो है वो पंक्चर करेगी, वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो एरिया जो होता है दैट एरिया बिकम हार्डन, ठीक है, कि वहाँ पे बॉडी के इम्यून सेल्स आ जाते हैं, उससे क्या हो जाता है कि वो एरिया जो होता है वो हार्डन हो जाता है, और ये माइट जो होती है दिस माइट एक्चुअली कीप्स ऑन फीडिंग, ठीक है। उस फीडिंग से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो लेयर जो है वो स्कैब की फॉर्म बन जाएगी, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्कैबीज माइट, ठीक है। कि स्कैबीज माइट जो शीप स्कैब माइट है दैट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्कैब फॉर्मेशन इन अ वे द प्लेस एट विच इट अटैक, ठीक है, जिस प्लेस के साथ ये अटैच करती है उसके साथ बच्चों की क्या कर रही होती है, वहाँ पे क्या होता है कि स्कैब की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, शीप स्कैब माइट, ठीक है। कि शीप्स वगैरह के अंदर जो होती है वो वाइट इंक्रस्टेशन जो होती हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल्स क्या आते हैं दे एक्चुअली गेट रिड ऑफ दिस, मुझे ये क्या इरिटेशन काज करें आप लोग, दे काज एक्चुअली इरिटेशन, मतलब दे एक्चुअली दिस स्कैब माइट cause irritation to animal, ठीक है। तो this irritation is actually observable in a way or animal, goat, sheep actually rub itself with other animal or with walls with some surface, ठीक है। क्या होता है कि जिस एनिमल के ऊपर जो है वो इस माइट का अटैक होता है, जिससे क्या होता है कि स्कैब की फॉर्मेशन हुई होती है, तो एनिमल जो होता है वो अपनी स्किन को रब करते हैं डिफरेंट सर्फेसिस के साथ, तो इससे क्या किया जा सकता है, कैरेक्टराइज किया जा सकता है कि दैट एनिमल और दैट कैटल इज एक्चुअली स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्कैब माइट, ठीक है। अगर हम इसके प्रिवेंटिव या जनरल बच्चों कंट्रोल की बात करें तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स में आपके पास क्या दैट इज डिपिंग टेक्निक, डिपिंग टेक्निक इन अ वे के जो सम केमिकल्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास कुछ जो है वो निकोटीन है, टॉक्साफिन है, निकोटीन टॉक्साफिन या सम अदर केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या माइट्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके जो सोल्यूशन की फार्मूलेशंस होती हैं दे कैन बी अप्लाइड ऑन एनिमल बॉडी, ठीक है। कि सिंपल क्या किया जाए कि जो है वो कोई भी केमिकल है उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करके किसी भी स्प्रे की फॉर्म में या बाय हैंड जो है वो और एनिमल की बॉडी के ऊपर क्या किया जाए, मतलब लगाया जाए, तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट डाइल्यूशंस में तो आपके पास क्या होता है कि माइट्स जो होती हैं ये कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि ये शीप्स या कैटल के अंदर हैवी जो है इन्फेस्टेशन हो जाती है, इस वजह से क्या होता है कि सेवरल जो होती हैं वो डिपिंग टेक्निक्स रिक्वायर होती हैं, इससे क्या होता है कि आप एनिमल को क्या कर सकते हो, उससे फ्री करवा सकते हो इसके कंट्रोल से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो माइट्स की अगर बच्चों हम जनरल उसकी बात करें कि जनरल कंट्रोल मेजर्स की बात करें हो वी कैन एक्चुअली कंट्रोल, ठीक है। कि कंट्रोल मेजर्स में हमारे पास आ जाता है कि रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। कि क्योंकि आपके पास माइट्स जो हैं इनके डिफरेंट जो है वो डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। सो वी कैन गो फॉर रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, क्लोज कट लॉन्स एंड गार्डन विद वेल केप्ट पास एंड वीट फ्री बेड्स, ठीक है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ टॉल वीड्स, residual spraying on vegetation, ठीक है। when removal of vegetation is not possible it can be sprayed with residual insecticide applied with ULV spray and equipment, ठीक है। कि ये this is actually the these are actually the general control measures. Each and every type of mite is specifically associated with the specific disease and its control measures are different. Mostly different types of केमिकल्स आर एक्चुअली यूटिलाइज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स में हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल फार्मूलेशंस अवेलेबल होती हैं दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर देयर कंट्रोल, ठीक है। टू कंट्रोल द फॉर देयर कंट्रोल, ठीक है। कि अगर हम इनके जनरल बच्चों कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो मोस्टली जो हमारे पास माइट्स होती हैं आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कि इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू
टेक आउट, ठीक है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, दे एक्चुअली पंक्चर द स्किन, ठीक है कि ये स्किन के अंदर पंक्चरिंग कहा करते हैं। अगर आप इनको रिमूव करना चाहो तो क्या होता है, इनके माउथ पार्ट जो होते हैं वो स्किन के अंदर आ जाते हैं, बाकी बॉडी जो होती है उनकी वो बाहर आ जाती है, ठीक है। माइट्स के लिए क्या होता है कि ब्रशिंग वाली टेक्निक जो होती है, वो ये जनरल में बात कर रही हूँ कि माइट्स को अगर आपने आइसोलेट करना है तो सिंपल ब्रशिंग के थ्रू जो है वो सैंपल की आइसोलेशन की जा सकती है और उसको एनालाइज किया जा सकता है कि इसके अंदर माइट्स प्रेजेंट है यानी। और टिक्स के लिए जो है उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेशन होती है, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के ट्विजर वगैरह यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या है कि मतलब केयर होनी चाहिए इनको रिमूव करने के लिए, इनको तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि मतलब हमारे पास जनरली जो है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, उन केमिकल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट सर्फेसिस होती हैं, दैट कैन बी एन एग्रीकल्चरल एरिया, दैट कैन बी स्टोर्ड ग्रेन, ठीक है कि कोई भी हमारे पास एग्रीकल्चरल एरिया जहाँ पे माइट्स होती हैं वो बिकॉज माइट्स एक्चुअली रिजाइड्स ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर भी रिजाइड कर सकते हैं। दे कैन बी हाउस होल्ड, ठीक है कि हमारे पास जो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके ऊपर भी क्या करते हैं, मोस्टली जो कारपेट्स होते हैं इनके अंदर भी क्या करती हैं माइट्स होती हैं वो रिजाइड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो गार्डन प्लांट्स होते हैं, गार्डन प्लांट्स के साथ भी सब माइट्स होती हैं वो एसोसिएट होती हैं। तो इन ऑल दैट केसेस जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन आता है माइट्स को कंट्रोल करने के लिए कि हमारे पास क्या है कि डिफरेंट केमिकल फार्मूलेशंस अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट केमिकल फार्मूलेशंस जो होती हैं दे आर अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ स्प्रे और इन फॉर्म ऑफ मतलब डिफरेंट जो फार्मूलेशन है कि स्प्रे की फॉर्म है या फिर डिफरेंट जो पाउडर फॉर्म है, क्या किया जाता है इनको अप्लाई किया जाए, या डिफरेंट क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स होती हैं। अगर कोई भी मतलब कैटल है, शीप है या ह्यूमन बींग्स को ये इन्फेक्ट कर रही हैं तो उनकी स्किन के ऊपर क्या किया जाए, इन ऑइंटमेंट्स को अप्लाई किया जाए सो दैट वी कैन कंट्रोल देयर सो वी कैन कंट्रोल दीज माइट्स, ठीक है कि इन माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक मतलब कर सकते हैं हाउ दे आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि हमारे पास माइट्स जो होती हैं दे एक्चुअली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मतलब हमारे पास इनका इंपॉर्टेंट रोल नंबर 1 पे आ जाता है कि ये ह्यूमन बींग्स के अगर ऊपर अटैक करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके चांस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर जनरली दे आर काजिंग इचिंग, ठीक है, तो दैट इज नॉट मतलब कैटास्ट्रॉफिक फॉर ह्यूमन बींग, दैट इज नॉट ड्रेडफुल फॉर ह्यूमन बींग, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि मोस्टली इन्फेक्शन से रिकवर कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इफ देयर इज समवन हु इज एक्चुअली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, हु इज ऑलरेडी वीक पर्सन, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इनका जो इन्फेक्शन है, इनकी जो रैश है, दैट इज डेंजरस, दैट इज ड्रेडफुल। और इसके अलावा क्या है कि मोस्टली जो किड्स वगैरह होते हैं, यंग इन्फेंट्स होते हैं, दे आर आल्सो ससेप्टेबल, के ससेप्टेबल मीन दे आर एक्चुअली कैपेबल टू गेट इन्फेक्शन, और उनके पास इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास मतलब अडल्ट्स के लिए भी जो हमारे पास हैं ओल्ड एज या हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन के लिए ये क्या करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए इशू रिस्क काज करेंगे। सेकंड, हमारे पास अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास इन्फेंट्स हैं या यंग वंस हैं उनके लिए इफ़ यू टॉक अबाउट इन पर्सपेक्टिव ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी क्या करते हैं, ये उनकी जो है ओवरऑल ये मीट की प्रोडक्शन को मतलब वो अफेक्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन आल्सो अफेक्ट द जो हमारे पास अगर हम किसी मतलब अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट जो उनकी स्किन है उसको ये डैमेज कर रहे हैं तो लेदर इंडस्ट्री को भी ये क्या कर सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी को जो होते हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास माइट्स जो हैं इनका जो है वो कंट्रोल दैट इज सिग्निफिकेंट। इसके अलावा हमारे पास माइट्स जो हैं ये सेकेंडरी जो डिजीजेस की डेवलपमेंट में है उनमें भी क्या कर सकते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट कैन द सेकेंडरी इन्फेक्शन कैन बी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, ठीक है, कि दे कैन एक्ट एज मतलब सोर्स फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा कि मतलब ये क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली वर्सन द कंडीशन के अगर कोई ऑलरेडी जो है वो वीक पर्सन है या हमारे पास जो वीक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और क्या कर देंगे, ससेप्टेबल बना देंगे किसी और इन्फेक्शन के लिए, तो दैट इज़ नॉट मतलब हमारे पास सूटेबल नहीं है। तो इकोनॉमिकली क्या करते हैं, ओवरऑल हमारे पास अगर हम जनरली माइट्स की बात करें तो माइट्स आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट इन प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन देयर
मतलब मतलब हमारे पास क्रॉप्स के उसके हवाले से भी करेंगी। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन बींग्स को भी और कैटल्स को भी, और हमारे पास जो ह्यूमन इच माइट है दैट इज स्पेसिफिकली, और इसके अलावा मेंज जो है ये भी माइट एसोसिएटेड एक फेमस डिजीज़ है। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, माइट जो है दे आर एक्चुअली द मतलब कॉजेटिव एजेंट ऑफ different types of diseases that are actually considered negligible. Mites जो हैं they are different from insects. They actually belong to class Acrina. ठीक है, Acrina जो है, इसके अलावा जो माइट्स की स्टडी के साथ स्पेसिफिकली ब्रांच एसोसिएट करती है दैट इज एक्चुअली जो माइट्स और टिक्स के साथ एसोसिएट करती है दैट इज कॉल्ड एक्रोलॉजी। ठीक है, एक्रोलॉजी है। इफ़ यू टॉक अबाउट देयर बॉडी जनरल सी, तो इनकी जो बॉडी जो होती है दैट इज़ एक्चुअली अनसेगमेंटेड होती है। 4 लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या, तो इसकी ऑल जो स्टेजेस होती हैं दे एक्चुअली कंटेन 8 लेग्स एक्सेप्ट लार्वल स्टेज दैट इज़ एक्चुअली हैविंग 6 लेग्स। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो माइट्स हैं इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर सकिंग जूसेस फ्रॉम होस्ट फ्रॉम देयर होस्ट स्किन दैट कैन बी प्लांट और एनी एनिमल स्किन। ठीक है, कि एनिमल बॉडी या किसी भी होस्ट की स्किन के साथ ये अटैच होते हैं और उससे क्या करते हैं, जूसेस को सक करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक था, दिस वाज ऑल अबाउट माइट्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली अफेक्टिंग how they are actually influencing the human population, human society। ठीक है, माइट्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट इन अ वे कि हमारे पास इनका रोल है ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी और कैटल के ऊपर भी। ठीक है, हमारे पास ओवरऑल जो इकोनॉमिकली इनकी सिग्निफिकेंस है कि ह्यूमंस के अंदर मैन जो है दैट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड डिजीज। इसके अलावा कैटल या हमारे पास एनिमल्स जो है उनको भी ये डैमेज करते हैं, बर्ड्स को भी डैमेज करते हैं। तो दे आर वेरी significant in terms of economic zoology that are studied under the branch of ecology। ठीक है, कि ecology specific branch है जो कि इनके साथ associate करती है। So their characterization and identification is important in a way कि हम क्या करें, इनको कंसिडर करें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स के तौर पे।